Hello everyone. Beta, in our Yes, sir. previous session, actually the recording was stopped due to the some technical issue. So अभी क्या होगा? This is the second part. The recorded video of the today's live class would be uploaded in two section. The first part जो है already जो हो चुका है उसको भी upload किया जाएगा और जो अभी जो शुरू होने जा रहा है that would be uploaded with the name of the second part. Okay. Of today's live class. Yes. Okay. We were discussing in our first part. We were discussing about जीरण के बारे में बताया गया. Now let's have some looks. Let's have a look from your book. The word weeping is actually a verb. We are talking about a word weeping. Weeping is actually a verb. कहा जा रहा था जब ये weep आपका अकेला वर्ड आएगा तो weep means रोना. आप ही लोगों ने बताया. And it is a verb. लेकिन अगर सिर्फ weeping लिखा है, weep नहीं अगर weeping लिखा है, then you would be telling that it is also a verb. Weeping is a verb. लेकिन कई बार इसी weeping verb को as a noun भी यूज किया जाता है और जब noun यूज किया जाता है तो वो वहां पे क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? Gerund. अब आप अपने बुक्स में देखेंगे so that we can complete the things. The word weeping is actually a verb. जो weeping word है ये वास्तव में क्या है? verb है. वास्तव में एक however हालांकि in this sentence आपका जो ये sentence ऊपर लिखा है weeping is not allowed in my woods. In this sentence it is used as a noun. In this sentence it has been used as a noun, not as a verb. weeping के बारे में बताया जा रहा है. नहीं weeping कोई things है एक तरीके से या कोई मतलब weeping has been used as a noun. weeping एक तरीके से कोई क्रिया का किसी का नाम है एक तरीके से तो उसके बारे में बताया जा रहा है. That means कि weeping has been used as a noun in this sentence. When a verb ends in ing, when a verb ends with ing, जब कोई verb ing के साथ end हो and used as a noun और जब वो when a verb ends with ing, जब कोई verb ing के साथ end हो और noun की तरह यूज हो then we call it a gerund. फिर तब हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे gerund कहते हैं. A gerund phrase is a phrase containing a gerund. Gerund phrase क्या होता है? Gerund phrase is a phrase that is having a gerund. अब gerund क्या होता है ये आपको क्लियर है? Yes, sir. बेटा let me confirm that कि whether my voice is clear or not. Are you all getting my voice properly? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो that means कि gerund क्या है ये बताया जा चुका है. gerund phrase क्या होता है? अब gerund phrase भी अगर कोई पूछ ले तो gerund phrase भी बता सकते हैं. क्यों? Yes, sir. चलिए Yes, sir. वन बाय वन एवरीबॉडी. जिसके यहाँ से बच्चा बोल रहा है कोई और बोल रहा है प्लीज अपना माइक बंद करें. अतुल चौहान, व्हाट आर gerund? जल्दी वी आर हैविंग वेरी फ्यू. सर जी ध्यान से सुने नहीं. when a verb ending in ing and using a noun. बुक नहीं पढ़ना, आंखें बंद करके बताइए. बुक नहीं पढ़ना है. बुक पढ़ के तो कोई भी बता देगा. आई एम नॉट आस्किंग टू रीड. आई एम टेलिंग यू ऑल, आई एम आस्किंग दैट कि व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. आपने क्या समझा? आप हिंदी में बताएं, इंग्लिश में बताएं. आप gerund क्या है, आपको क्या समझ में आया, आपको वो बोलना है. अमन वर्मा. Sir, a verb that function as noun is called gerund. Yes, sir. ing form of the verb. बेटा ing form of the verb ऐसा बोलेंगे तो it would be more better. Yes, अनुप्रिया. Sir, a word that has ing in the last and is used as a noun, it is called gerund. Okay. तनिष्का बेटा. तनिष्का. Yes, sir. जल्दी से Sir,
The ing form of verb that functions as a noun are called gerund. सौरभ कनौजिया, Sir, a word that function noun, but that is used in ing form, that is called gerund. जिन्होंने वीडियो बंद किया है वो बुक देख के बताएंगे, सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फ्रॉम देम. दिव्या, कुणाल तिवारी ध्यान से सुनिए, मैं आपसे भी पूछूंगा, सबसे लास्ट में पूछूंगा बट आपसे जरूर पूछूंगा. दिव्या. A verb ending ing is used as a noun. It is called a gerund. अनिल मौर्य. Sir, whenever a word ending ing form and used as a noun, सचिन चौहान. it is called gerund. सचिन चौहान. The word that used in ing form and as a noun, they are called gerund. सावित्री. Sir, when a verb ing form of the noun is called gerund. ing फॉर्म ऑफ द नाउन नहीं होता, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ing फॉर्म ऑफ द वर्ब जब एज ए नाउन यूज किया जाए तब उसे बोलते हैं जीरेंड. चलिए ठीक है. अमेरिका. निहारिका. आकांक्षा बेटा आप बताइए. निहारिका गायब हो गई. When a verb in ing and use as a noun, we called it a gerund. चलिए निहारिका इज देयर. चलिए ठीक है, आपने बोला. ओके रुचि. When a verb uses end of the ing form of the verb and use a noun, this is called the gerund. चलिए ठीक है, बहुत हो गया. नाउ कुणाल तिवारी, आप भी एक बार बताइए, आपने सुना सबकी बातें या नहीं? Sir, when a word ends in ing, it's use a noun. It is called a gerund. बेटा कई लोग कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं. देखिए मैंने यहाँ पे एक लिखा वीप और मैंने दो वर्ड लिखा है. पहला वर्ड है वीप, दूसरा है बीपिंग. वर्ड मतलब होता है शब्द. लेकिन अब मैं पूछूं ये कौन सा वर्ड है? ये वर्ड क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? तो आप कहेंगे वीप इज आल्सो अ वर्ब, बीपिंग इज आल्सो अ वर्ब. बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझने की जरूरत है. जब समझाऊं तो समझना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए. वीप भी आपका वर्ब है, वीपिंग भी वर्ब है. लेकिन जो वीप है ना, जब ये नाउन एज ए नाउन यूज किया जाएगा तो ये नहीं कहलाएगा कभी भी, ये जीरंड नहीं कहलाएगा एज ए नाउन अगर यूज करें. तो इसका मतलब अगर ये कोई बोल रहा है व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, जब वर्ब है नाउन की तरह यूज किया जाए तो जीरंड कहलाता है. इट्स रॉन्ग, 100% रॉन्ग है ये. आप वर्ब को नाउन की तरह यूज करें तो जीरंड नहीं कहलाएगा. जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप उसी वर्ब का आईएनजी फॉर्म को एज ए नाउन यूज करेंगे तब जीरंड कहलाएगा. समझ में आया? When ing form of the verb used as a noun, Yes, sir. it's called the gerund. That's all for today. So now let's move ahead. Let's have some examples. Beta, maybe you are having some network issue, that is why you are not getting my voice clearly. Other students are getting. Am I audible to you all? Other students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now move on the next. Now move on the some more examples mentioned into your book. Moving the chair was not easy. Moving the chair was not easy. Moving the chair. यहाँ पे moving has been used as a noun. chair के लिए यूज किया गया है. In the same way, in the second sentence, dancing is so much fun. Dancing जो है बहुत ही मजेदार होता है.
तो डांसिंग यहाँ पे एज ए एक्शन वर्ड तो नहीं यूज किया गया है ना, ये तो डांसिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो डांसिंग आपका यहाँ पे वर्ब है या नाउन है? किस तरह एक्ट कर रहा है, वर्ब Noun. है नाउन की तरह? noun, इसको नाउन Noun की बोलेंगे, नाउन की तरह। तो यहाँ पे डांसिंग क्या है, डांसिंग आपका जीरेंड है। ओके, इन द सेम वे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हंटिंग, यहाँ पे एक काम हो रहा है, वो दे आर लुकिंग, वो देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं या खोज रहे हैं? किसको खोज रहे हैं? यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, दे आर लुकिंग या दे आर लुकिंग, वो देख रहे हैं या खोज रहे हैं। किसके लिए? टू हंटिंग। हंट मीन्स होता है शिकार, शिकार करने के लिए। शिकार करना। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हंटिंग। ये हंटिंग यहाँ पे आपका वर्ब एक्शन नहीं है, ये हंटिंग के लिए जो इनका एक्चुअल में जो द मेन एक्शन इज गेटिंग हियर, जो एक्शन यहाँ पे हो रहा है वो लुकिंग है। So in the next sentence, swimming is a good exercise. Now here swimming has been used as a noun. Swimming के बारे में बताया जा रहा है। Swimming is not a action. Swimming जो है आपका action नहीं है, it's not a action. It is not has been used as a verb. It is used as a noun. That means कि swimming is also one of the gerund. We enjoyed painting the fence. We enjoyed painting the fence. Which action is getting done? Enjoy is also one of the verb. और enjoy से enjoyed हो गए, यानी यहाँ पे इन्होंने enjoy किया, एक काम हो रहा है, एक एक्शन हुआ कि ये enjoy कर रहे थे या enjoy किया, enjoy करने का काम हो रहा था। यहाँ पे किस चीज का enjoy किया जा रहा था? पेंटिंग को enjoy किया जा रहा था, फेंस की पेंटिंग को। दैट मीन्स कि पेंटिंग इज अ वर्ब। पेंटिंग करना तो एक तरीके से वर्ब ही है ना, लेकिन पेंटिंग को यहाँ पे एज ए नाउन यूज किया गया है। दैट मीन्स पेंटिंग इज ए जीरेंड। ओके, क्लियर? yes sir, Yes. Skating is Rahul's favorite pastime. Playing well is important if we have to win the match. Playing well is important. यहाँ पे अब प्लेइंग के बारे में बताया जा रहा है। इट इज नॉट अ एक्शन, इट इज नॉट हैज बीन यूज्ड, मतलब इट इज नॉट हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। दैट मींस कि प्लेइंग इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द जीरेंड। तो व्हाट आर जीरेंड्स? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। Yes. yes sir, एनी क्वेरी जीरेंड को लेकर के? कोई डाउट अगर हो तो पूछें। ओके, लेट्स मूव अहेड। सम एक्सरसाइजेस फ्रॉम योर बुक। जब एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो जो भी और भी डाउट्स अगर मन में होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, और थोड़ा सा मन में जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से बैठेगा, एंड वी वुड बी एबल टू मेमोराइज द थिंग। व्हाट वी नीड टू डू इन द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जीरेंड्स। वी हैव टू आइडेंटिफाई द जीरेंड्स। आइडेंटिफाई मींस क्या होता है? सौरभ कनौजिया। Sir. नहीं, मुझे इस क्वेश्चन का मतलब कौन समझते हैं? हाँ, सौरभ कनौजिया, मैं आप ही का नाम ले रहा हूँ। यू शुड टेल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिफाई? सर पहचानना। पहचानना है, वेरी गुड। आइडेंटिफाई द जीरेंड्स, जीरेंड्स को पहचानना है हर सेंटेंस में। टिक द बॉक्स नेक्स्ट टू द सेंटेंस दैट कंटेन ए जीरेंड। आपको उस बॉक्स के सामने सही का निशान लगाना है जिसमें जीरेंड है। ओके, देन अंडरलाइन द जीरेंड। उसके बाद आपको जीरेंड को अंडरलाइन भी करना है। ओके, Yes, sir. शी इज गुड एट पेंटिंग। पेंटिंग हैज बीन यूज्ड एज अ जीरेंड, तो इसको अंडरलाइन भी किया गया और यहाँ पे सही का निशान भी लगाया गया। ओके, Yes, sir. नाउ मूव अहेड इन द नेक्स्ट। विकास वर्मा प्लीज माइक बंद करें, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। बहुत क्लियरली आप सुनिए। विकास वर्मा इज नॉट कनेक्टेड वेल, उनको आवाज भी नहीं जा रही होगी मेरी, कोई बात नहीं। नाउ रीड द सेकंड सेंटेंस। निहारिका वर्मा, रीड द सेकंड सेंटेंस। I like swimming. आई लाइक स्विमिंग। अब आई लाइक इसमें फिलहाल ऑब्वियस सी बात है आज मेन वर्ब
अच्छा निहारिका, आप ही एक बार कोशिश करिए, क्या स्विमिंग यहाँ पे एज ए वर्ब यूज किया गया है या एज ए नाउन? क्या स्विमिंग यहाँ पे जीरेंड है या नहीं? सर जीरेंट नहीं है। जीरेंड नहीं है, वेरी गुड। निहारिका ने बोला जीरेंड नहीं है, जीरेंड नहीं है। अस्मित यदुवंशी आप बताइए, क्या स्विमिंग जीरेंड है या नहीं? इज इट ए जीरेंड? नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सचिन चौहान आप ही बताइए, स्विमिंग इज ए जीरेंड? सानिका वेट करिए, परेशान मत होइए। है। अच्छा पहले आपसे पूछ लेंगे तो सारा क्या बोलते हैं उसको, रहस्य क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर सीक्रेट। कुछ और बोलते हैं मूवीज में जो होता है। मैं अचानक भूल रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए कुछ होगा अभी बाद में, जब ध्यान आएगा बता दूंगा बस। चलिए एक अनदर वर्ड वी कैन यूज, ट्विस्ट। सारा मतलब ट्विस्ट गायब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्विमिंग इज ए जीरेंड और नॉट? सचिन चौहान। सर यस। यस, तो बताइए अगर स्विमिंग जीरेंड है तो विच, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा है? अनुप्रिया। सर नहीं सर, यह है। अच्छा आई लाइक स्विमिंग का मतलब क्या होता है अनुप्रिया? सर मुझे स्विमिंग पसंद। हाँ हाँ बताइए सर बताइए। मुझे स्विमिंग पसंद है। मुझे स्विमिंग पसंद है, यानी आई लाइक, पसंद होने का काम हो रहा है। सानिका अब आप बताइए। सर जीरेंट है और सर यहाँ पर स्विमिंग वर्ब है। स्विमिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है बेटा, यानी दैट मीन्स यहाँ पे जो आई लाइक है ना, आई एम लाइकिंग होता, आई लाइक होता, आई लाइक होता, तो दैट मीन्स वर्ब। यहाँ पे लाइक इज ऑल्सो वर्ब। स्विमिंग तो वर्ब है लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन यूज किया गया है। स्विमिंग इज ए वर्ब वर्ड बट इट इज नॉट ए वर्ब, इट हैज बीन यूज्ड एज ए नाउन, दैट मीन्स इट इज ए जीरेंड। लेकिन ये लाइक जो है ये आपका मेन वर्ब है। इसी में अगर आप टेंस के हिसाब से अगर चेंजेस करना है तो आप इसमें चेंजेस करेंगे। आई लाइक स्विमिंग को अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो, देन यूड बी राइटिंग दैट कि आई एम लाइकिंग स्विमिंग। अगर आप मैं बोलूं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप चेंज करिए, तो आप आई वॉज लाइकिंग यानी लाइक में, यानी टेंस के हिसाब से आप जो मेन वर्ब होता है उसमें आप चेंजेस लाते हैं या नहीं? क्यों शानिका, अनुप्रिया? तो अगर आपका यहाँ पे वर्ब होता तो टेंस के हिसाब से उसमें चेंजेस भी होते हैं, है कि नहीं? यस सर, यस सर। दैट मीन्स कि स्विमिंग has not been used as a verb, it has been used as a noun and it's a gerund. निहारिका ध्यान से समझिएगा। Now the next one, that means कि what we have to do, we are supposed to draw, underline this one, swimming, और यहाँ पे सही का निशान लगाना है कि इसमें gerund है, ओके? जिसमें gerund नहीं होगा उसमें ऐसा नहीं करना है। Now the third line, he was reading a novel. He was reading a novel. Anil Maurya. Yes, sir. That whether there is any gerund or not. Sir, है. है, very good. Divya. सर है। है, very good. Savitri. सर है। चलिए सावित्री भी बता रही हैं। चलो एक काम करते हैं, only 8 minutes is remaining, so I'll ask from everybody, जिसको लगता है कि in the third sentence gerund है वो one finger show करें। जिनको लगता है no, for no only 2 letters, 2 finger you need to show। सभी लोग जिनको लग रहा है के लिए only yes, one finger के लिए yes और 2 finger मतलब no, 2 finger मतलब no, 1 finger मीन्स यस। सौरभ कनौजिया जल्दी से, किसी और का देखिए मत, कई लोग लेट से करते हैं कि और बच्चों का देख ले फिर उसके हिसाब उसके बाद मैं बताऊंगा। अमन वर्मा आपको बताना पड़ेगा कौन सा जीरेंड है, आपने 1 फिंगर शो किया है। ओके, डाउन योर हैंड्स। सर
Sir, I think reading. रीडिंग आपका क्या है, जरा इसका मतलब बताइए, इसका अर्थ बताइए क्या है? सर वह एक नॉवेल्स पढ़ता है। वह एक नॉवेल पढ़ता है। अच्छा, ही वॉज रीडिंग नॉवेल, एक कौन सा सर था। चलो, वह एक नॉवेल पढ़ता था। तो ये बताइए कौन सा टेंस है ये? सर टेंस पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया गया है। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस। यस सर, वह पास्ट पढ़ रहा था एक नॉवेल, वह एक नॉवेल पढ़ रहा था। यस सर। रीडिंग, अगर यहाँ पे इज इसको कर दूं तो ये इज रीडिंग हो जाएगा। मान लीजिए वाज के पास्ट कंटिन्यूअस को अगर आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा ये? ही रेड नॉवेल। यस दैट मीन्स कि रीडिंग आपका टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। और बेटा यहाँ वह नॉवेल एक नॉवेल पढ़ रहा है मतलब एक काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने का काम यानी रीडिंग का काम हो रहा है। और रीडिंग का जब काम हो रहा है, रीडिंग का ही काम इस सेंटेंस में हो रहा है, तो क्या रीडिंग कभी नाउन की तरह का, मतलब नाउन तो मतलब रीडिंग का ही काम हो रहा है, तो रीडिंग इज एक्शन। नॉट अग्री हूँ। तो रीडिंग आपका कहाँ पे रीडिंग तो एज ए वर्ब काम कर रहा है। तो जितने लोगों ने है बोला है ना, सावित्री, दिव्या, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। रीडिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप सबको देखना क्या है, किसी भी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म देखिए, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब कौन सा है। आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आपने खोजा, यहाँ पे खोजा रीडिंग है। अब आप देखिए रीडिंग क्या इस सेंटेंस में रीडिंग का कोई काम हो रहा है या रीडिंग के बारे में बताया जा रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रीडिंग का काम हो रहा है। दैट मीन्स इट इज अ वर्ब, इट्स नॉट अ नाउन, इट्स नॉट अ जीरेंड। तो क्या इसको अंडरलाइन या हम लोग चेक करेंगे? नो सर। No, sir. Now the fourth one, she likes listening to music. 1 for yes, 2 for no. Quickly, only 5 minutes remaining. 1 for yes, 2 for no. She likes listening to music. 1 for yes, 2 for no. I need 2 finger. जल्दी से, अरे फिंगर शो करिए। सावित्री, ये सब क्या है? इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, पैराग्राफ नहीं है, जो समय ले। अरे शानिका, आप बताइए जरा, आपने 2 फिंगर शो किया। सर इसमें जीरेंट सर नहीं है। तो यस फॉर 1 फिंगर फॉर यस, 2 फॉर नो। आपने बोल रही हैं इसमें कोई जीरेंट नहीं है। 4th लाइन में जरा मुझे बताइए, जीरेंट नहीं है इसमें। आईएनजी वर्ब है लिसनिंग। क्या ये लिसनिंग जीरेंट है या नहीं सानविका? सर है। बट यू शोन 2 फिंगर। बेटा अगर आईएनजी फॉर्म वाला कोई वर्ब है तो तुरंत ही सबसे पहले उसको देखो कि ये है या नहीं है। तो लिसनिंग आपका यहाँ पे है, तो लिसनिंग आपका। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं एक बार फिर से, समझते हैं। इसमें आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब देखिए कौन सा है, लिसनिंग। 2 वर्ब है इसमें, एक लाइक वर्ब है, एक है लिसन। लाइक इज ऑल्सो वर्ब, लाइक भी एक वर्ब है, लिसन भी वर्ब है। लेकिन एज ए टेंस में चेंजेस करने पे आपका लाइक में चेंजेस आएंगे। लाइक्स हो जाएगा, लाइकिंग हो जाएगा, शी इज लाइकिंग हो सकता है, शी वाज लाइकिंग हो सकता है। बट लिसनिंग टू म्यूजिक, सुनना पसंद है, उसे पसंद है। जो काम एक्चुअल में जो एक्शन हो रहा है इसमें, उसको पसंद होने का, पसंद करने का एक्शन हो रहा है। क्या सुनना पसंद है? म्यूजिक। सुनना पसंद है, सुनना पसंद है, उसको बोलना पसंद है, कहना पसंद है, खाना पसंद है। तो जो काम है, जो एक्शन है, एक्चुअली जो मेन वर्ब है कि उसके पसंद, लाइक इज एक्टिंग एज ए मेन वर्ब। तो दैट मींस कि लिसनिंग इज ए जीरेंड। ओके, यस ठीक है। ओनली 3 minutes is remaining. So what I'll do, I'll assign some of the tasks to you all so that you all can do by yourself. और इससे क्लियर हो जाएगा कि whether you all are able to understand or not. अभी आप लोग को समझ में आ भी गया टॉपिक, या बस हाँ या ना करते जा रहे हैं? ई से लेके जे तक आपको अपनी मर्जी से करना है। कर ले जाएंगे? यस इन द सेम वे, इन द सेम वे। देखिए पहले लाइन में आपका आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब कौन सा? आईएनजी वाला ये एक्सरसाइजिंग। सर एक्सरसाइजिंग।
अभी किसी को बताना नहीं है कि है या नहीं, सिर्फ खोजना आईएनजी वाला देखिए, फिर उसको आपको चेक करना है जैसे मैंने बताया था। जो एक्सरसाइजिंग है वो एज ए जीरेंड यूज हुआ है या एज ए वर्ब यूज हुआ है, आपको अपनी मर्जी से लिखना है। अगर हुआ है तो अंडरलाइन करके यहाँ पे टिक कर दीजिएगा सही का, और नहीं हुआ था देन यू कैन लीव इट। एवरीबडी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन। जो सेशन एंड होने के बाद इसको कंप्लीट करना है और तुरंत का तुरंत फोटो भेजना है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन यूजिंग जीरेंड्स। यहाँ पे कुछ बातचीत हुआ है, इसको जीरेंड का यूज करते हुए यूज करना है। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द बॉक्स। बेटा ध्यान से सुनिए, लोग अभी कंप्लीट मत करिएगा। कई लोग अभी तुरंत का तुरंत छापना शुरू कर दिया, मुझे बिल्कुल गंदी आदत लगती है। पढ़ाते समय कंप्लीट नहीं करनी है, क्लास के बाद आप कंप्लीट करिएगा। पहला क्वेश्चन जो करने के लिए बोला हूं, आपका पहला कन्वर्सेशन है, इसमें जीरेंड का यूज करना है। और आपको पता है जो ये बॉक्स में दिए गए हैं ये तो आपके वर्ब हैं, लेकिन क्या ये एज ए जीरेंड एज इट इज यूज किए जा सकते हैं? नो सर, आईएनजी नो सर, आईएनजी फॉर्म लगा। फर्स्ट, ING. व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे? ये ट्रैक्टर वाले तो और परेशान कर दे रहे हैं। मैं आप लोग का तो माइक बंद करा दूं, मैं अपना माइक बंद करूंगा तो पढ़ेंगे कैसे आप लोग? व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे? इसका आंसर क्या था? वी विल गो, क्या लिखा है? गो ट्राइंग, आई लव ट्राइंग इन सिटी मॉल्स, क्या ये होगा? नो सर, वी विल गो प्लेइंग, आई लव प्लेइंग इन सिटी मॉल्स, क्या ये हो सकता है? शॉप, नो सर, शॉपिंग। सर शॉपिंग, Shopping, I love shopping in city malls. Yes, shopping is the correct word. Shopping is the correct word that can be used in this blank and in this blanks too. Okay. In the same way, why are you restless? Why are you restless? अब इसका आंसर क्या? I'm tired of. I'm tired of क्या? Trying for the pizza या playing for the pizza या shopping for the pizza or waiting for the pizza या watching for the pizza या driving for the pizza. What should be the correct gerund? Sir, waiting. सर वेटिंग, Sir, waiting for the pizza. Waiting. बेटा in the waiting is the correct one. सर दोबारा यूज कर सकते हैं एक जो यूज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, you all can do. लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर different हो तो that would be better. बेटा in the same way also you all need to complete the C, D and E. Okay.